choose law? I was always interested in journalism, but eventually when I realized कि ये भी सब कुछ saturated से fields हैं, and therefrom I realized कि no, this is something I can apply my mind. So वहाँ से ना फिर took an admission in the law school और that's how it came about. So वो it was my decision, informed decision कि मुझे वकालत पढ़नी है. And I'm sure all of them are not having legal representation. Absolutely not. The facilitation No. of having a lawyer. Even मैंने वहाँ पे मैंने एक law student देखी. She was a law student herself, and then I came across a very reasonable woman. You already know that a person is lying or telling the truth. वो बहुत होते हैं और फिर जब आप कोर्ट्स में जाते हो, स्पेशली ट्रायल कोर्ट्स में जाते हो, तो इतनी लर्निंग है. ट्रायल कोर्ट्स में सबसे ज़्यादा लर्निंग होती है मुझे लगता है. मेरा ख्याल है कि कुछ अर्सा काम करने के बाद ही आपको समझ आती है that what shoe fits me basically. I was meant for this. I am glad you are clear about it. I am clear. देखिए वो तो शॉर्टकट है ही नहीं. शॉर्टकट तो है ही नहीं ना. लर्निंग का कोई शॉर्टकट नहीं है. तो वो तो खवातीन के लिए भी उतना ही है, मर्द हजरात के लिए भी उतना ही है. इस सोसाइटी की एक खूबसूरती ये है कि women are generally respected. एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपका एक जो वर्क एक्सपीरियंस है एज अ रेडियो प्रेजेंटर. Yes, tell us about that. वो क्या? बड़ा मजे का था. I was always a person जो कि रेडियो के साथ चिपक के बैठा था. And I wanted to do radio, लेकिन then I realized that radio is not something जो कि आप in Pakistan pursue कर सकते हो as a career. How is the work-life balance? It's not a balance. It's not a balance. Integration. It is an integration. It is not a balance. Assalamu alaikum everyone. This is Advocate Shiza Qureshi with a new episode of Women in Law. और आज हमारे साथ फिर से एक बहुत अमेजिंग और डाइवर्स किस्म की गेस्ट मौजूद हैं. कोशिश मेरी यही होती है कि आपके सामने हम लीगल फ्रेटर्निटी से ऐसी लड़कियां और ऐसी फीमेल्स लेके आएँ जो कि इनकरेजमेंट का और एक बूस्ट का बायस बने उन तमाम लड़कियों के लिए जो कि लुक फॉरवर्ड कर रही हैं एक बहुत डायनामिक करियर. So we have today Advocate Fatma Gohar with us. Fatma, welcome to the show. Thank you very much, Azhar, for having me. That's the pleasure is all ours. तो Fatma, जिस तरह going through your profile, जिस तरह मैंने जिक्र किया that माशाल्लाह you have a very determined काफ़ी एक you more than a decade I believe आपका एक experience हो गया है legal field में. So मैं बिल्कुल I'll take you back to the memory lane and I'm going to मैं हमेशा ये question ज़रूर पूछती हूँ. What made you choose law? उसके बाद पूछते हैं कि किधर से किया और क्या किया. You know what? They say that from the running of a school to the making of the constitution, you know it all if you're a lawyer. So basically it is something ordinary yet extraordinary. I wasn't a medicine student, I wasn't a sciences student, तो मेरे लिए कुछ fields तो completely shut down हो गई जब हमने OA levels किया. उसके बाद उस ज़माने में आज से 15 साल पहले बिजनेस मैनेजमेंट ये सब कुछ सारे ही पढ़ रहे थे. आई ऑलवेज वांटेड टू डू मास कम्युनिकेशन. आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन जर्नलिज्म, बट इवेंचुअली देन आई रियलाइज कि ये भी सब कुछ सैचुरेटेड से फील्ड्स हैं. ए लेवल्स में आई हैड लॉ एज अ सब्जेक्ट एंड देयर फ्रॉम आई रियलाइज कि नो दिस इज समथिंग आई कैन अप्लाई माई माइंड इनटू. सो वहाँ से ना फिर टेकिंग इट फॉरवर्ड देन आई took an admission in the law school और that's how it came about. So Otherwise I don't have a legal background. जिस तरह लोगों के लिए होता है कि ज़्यादातर जब भी मैंने लोगों से सवाल किया तो जो लोग मेडिसिन ऑप्ट नहीं करना चाहते वो लॉ में आ जाते हैं. कुछ लोग एक्सीडेंटली आते हैं कि और कुछ नहीं मिला तो हमने ये करना है. But actually for you it was a decision. It was an informed decision at that time. It didn't take me much long, but it was an informed decision. I realized that I could apply my mind here. और दूसरी बात है कि जैसे हो ना completely it was different because I don't have anybody in my family who is a lawyer as such. So I don't have that background क्योंकि a lot of times doctors के पास पूरे हॉस्पिटल्स बने होते हैं उनकी family doctors के, lawyers के पास chambers होते हैं. This wasn't the case in my matter. So it was my decision, my informed decision कि मुझे वकालत पढ़नी है. Although मैंने उस टाइम पे ये नहीं सोचा था कि मैं completely कोर्ट्स में जा रही होंगी या मैं इन हाउस की तरफ होंगी या मैं इसके आगे क्या करूँगी. But initially I realized कि नहीं मुझे ना I think this is something I can apply. This actually has a good application of mind altogether. So that's where I came in. ओके, सो ग्लैड टू नो. और ये तो आपकी प्रोफाइल के अंदर मेरा ख्याल है एक और एडिशन हो गई व्हेन यू टेल अस दैट यू आर द फर्स्ट जनरेशन लॉयर एंड दैट टू अ फीमेल फर्स्ट जनरेशन लॉयर. सो लेट्स I'll put that question moving further. कहाँ से किया लॉ और किस लॉ स्कूल से किया एंड हाउ वाज दैट? सो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की एक्सटर्नल डिग्री आई थिंक अब तो बहुत कॉमन हो गई है. उस वक्त तो हम लोग शुरू के सिंगल डिजिट बैजेस नहीं होते थे जो. So University of London की external degree and I did it here from Pakistan College of Law.
Okay. So Okay. that's where I started. And moving forward then, फिर आपने ग्रेजुएट करते ही काम शुरू किया? जी, even before the results were out. अच्छा, ज़बरदस्त. Yes. Okay, that is amazing to know. Okay, तो फिर पहली फर्म की तरफ हम let's go towards now your work experience. कहाँ सबसे पहला काम किस नीश में किया and what was that? अच्छा, वो भी एक नीश थी. I like the word that you used here. क्योंकि वो भी it's not see, I was into litigation. I joined an NGO called Sanjog. Okay. They were providing free legal aid to juveniles in particular. So Amazing. उनका काम जो था वो juveniles की free legal aid से start होकर उनकी reunification, socio-economic reunification तक जाता था. उसके बाद so I started there as a legal officer and वहाँ पे मैंने काफ़ी काम किया, काफ़ी काम सीखा. बेसिकली काम सीखा ही मैंने वहाँ से. ट्रायल्स कोर्ट्स के अंदर, जेल्स के अंदर जाके, जुवेनाइल बैरक्स के अंदर जाके, फिर जेल ट्रायल कोर्ट्स में, और उसके बाद फिर इवन 1-2 अपील्स हमारी हाई कोर्ट तक जब जाती थी. सो वो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जो था वो सारा का सारा जो जुवेनाइल जस्टिस ऑर्डिनेंस वगैरह वो सारा फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ. उसके बाद उन्हीं का आगे हम एक प्रोजेक्ट मिला जो कि था जिसमें ख़वातीन के लिए काफ़ी काम था. So for 6-7 months, what I did, I was visiting the women barrack in the Kot Lakhpat jail almost twice a week. और वहाँ पे we were conducting consultative sessions with the women prisoners और उनकी free legal aid, उनकी unification. So I did a lot of criminal litigation at that time. That's incredible work, फातिमा. तो मैं बिल्कुल इसी के कॉन्टिन्यूंस में क्वेश्चन आपसे लेना चाहूँगी कि क्या हालात हैं अंदर for women in the barracks and for the juveniles in the barracks. हम काफ़ी चीज़ें सुनते भी रहते हैं, लेकिन someone like you who has worked inside out of the system, what are your Okay, views there on are that? good days, there are bad days as well. So there are NGOs who are actually supporting a lot inside the prisons, barracks as well. आप देखेंगे कि बच्चों की barracks मुझे हमेशा नीट क्लीन मिली हैं. ख़वातीन की बैरिक्स मुझे हमेशा नीट क्लीन मिली हैं. वहाँ पे ख़वातीन के साथ फिर कुछ बच्चे भी होते हैं जो कि अंडर द एज ऑफ 6 होते हैं, जो कि अपने साथ वो प्रिजन में रख सकती हैं, बैरिक्स में रख सकती हैं. वो छोटे बच्चों के लिए डे केयर टाइप फैसिलिटीज़ और वहाँ पे बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ NGOs हैं जो स्कूल कंडक्ट कर रही हैं. ख़वातीन के लिए कुछ टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स टाइप टेक्निकल ट्रेनिंग के काम कर रही हैं. अंदर हमारे साथ एक डॉक्टर भी हर हफ्ते मेडिकल विजिट के लिए जाया करती थी बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए, इस तरह से. सो लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग एट दैट टाइम और काफ़ी ज़्यादा जो था वो NGO सेक्टर बहुत उसमें एक्टिव था. लेकिन सफाई सुथराई तो मैंने देखी है बिकॉज वो तो प्रिजनर्स ही है जो जनरली कर रहे हैं. बट उसके अलावा ये है कि अनफॉर्चुनेटली लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंड एंड विच एक्चुअली वाज which was a setback and it is still a setback. A lot of people who are inside the prisons who are actually alleged accused persons are not the right persons to be picked. You know, उनके trials इतने डिले हो जाते हैं, उनका जस्टिस मिलना उनके इतना डिले हो जाता है कि जिसकी वजह से वो कितना अरसा जो है वो जेल में बैठे होते हैं, गुजारते हैं. समरी ट्रायल्स की तरफ भी आए तो जज साहब महीने के आखिर में जाते हैं, एक दफ़ा जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें भी निकल जाती हैं. And I'm sure all of them are not having legal representation. Absolutely not. The facilitation No. of having a lawyer to बहुत represent ज़्यादा them नहीं, in the court. बहुत दफ़ा. और इवन मैंने वहाँ पे मैंने एक लॉ स्टूडेंट देखी अंदर. शी वॉज अ लॉ स्टूडेंट और वो मैं परेशान हो गई उसको देख के. मैं कहा आप यहाँ कहाँ से? तो उसने फिर दिखाया कि हाउ शी वॉज beaten badly and then उसके ऊपर सारा वो एक lot of उसके against केस फाइल करके एक frivolous और how she was put into prison और सारा अब उसका ट्रायल चलेगा, सब कुछ चलेगा. She was a law student herself and then I came across a very reasonable woman who actually said कि जी मुझे तो मैंने तो सिर्फ एक कमेटी पार्ट डाली थी. सो वो ख़वातीन 1-2 कमेटीज़ ने 1-2 ने मैं सब किया और उसके बाद फिर वो मेरे ऊपर आ गया. मेरे पे 406 का पर्चा कटवा दिया गया. और आपको पता है 406 का पर्चा जो है अच्छा खासा एक डिफिकल्ट ट्रायल बन जाता है उसका. फिर उसमें ऑफ कोर्स हीनियस ऑफेंसेस भी थे और इस तरह से एज पेटी एज सिंपलर और फ्रेवलस मैटर्स भी थे. सो वो आप परेशान भी होते हैं. कुछ के साथ तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं ना. बिल्कुल. I would like to take this further, Fatma. How did you manage yourself emotionally? क्योंकि आपने criminal side इस तरह deal की. I deal in criminal trials, rape, harassment, and what not. So it is very difficult कि आपने अपनी mental sanity कैसे रखनी है. How difficult it was? उस टाइम पे ना fortunately I wasn't married at that time, so the connection of feeling as a mother जो अब मैं शायद करूँ वो शायद उस वक्त पहले थोड़ा सा Fortunately वो मिसिंग था ऑलरेडी. तो उसकी वजह से शायद आप प्लस ये भी होता है कि when you started working you are also determined. Yes. मैंने करना है. हाँ, क्योंकि आपको पहले से as a lawyer what are you stepping into? Yes. और आपको पहले से इतना ज़्यादा नेगेटिविटी पता चल चुकी होती है कि फिर these things actually don't come as a surprise as such. For example हम लोग जब जुवेनाइल्स की बैरिक्स में भी जा रहे थे तो उन बैरिक्स के अंदर भी
There were so many children who were even at the age of 14 or even 17 years old. 17 years old तो completely उनका तो जो mental level होता है वो completely different होता है. It's not even considered to be as a child as such. वो अलग बात है कि हम 18 के साथ उसको एफिलेट करते हैं, लेकिन जो मेंटल आपकी हेल्थ होती है, सॉरी नॉट द मेंटल हेल्थ बट द मेंटल अंडरस्टैंडिंग होती है, जो आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है वो काफ़ी मेच्योर होता है कंपेयर टू अ पर्सन हु इज चाइल्ड हु जस्ट 13 years old 12 years old. उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी कॉम्प्रिहेंशन, उसकी अप्रिसिएशन डिफरेंट होती है. उधर भी बहुत हीनियस ऑफेंसेस भी थे और बहुत ऐसे भी थे कि बच्चे स्मगलिंग में इन्वॉल्व हो रहे थे क्योंकि बड़ों के साथ, कुछ बच्चे मगिंग में इन्वॉल्व हो रहे थे, कुछ जो थे वो डेकॉइटी में इन्वॉल्व होते थे कि बड़े 2-3 होते थे उनके साथ, और एक छोटा बच्चा भी जाता था जो पहले घर की बेल वो रिंग करता था. Okay. ठीक है. So you learned all that कि how that chain of events is बिल्कुल वो चेन ऐसे बनती है. place. लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता था कि बच्चा घर की बेल रिंग करता था, वो पानी मांगेगा या वो कोई छोटा काम करेगा, मेरी बॉल आ गई है, मैंने बॉल ढूंढनी घर जाके, इस तरह की चीजें होती. So as a lawyer, it was a lot of learning right learning. after coming out of law lot school. of learning. I think it must have been a very good experience. वेरी गुड एक्सपीरियंस, वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस. इतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलता है. और फिर जब आप रियलाइज़ करते हो कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज यू डील विद एवरी डे. पीपल डोंट इवन, आप जितना मर्जी उनसे कहलवाने की कोशिश करेंगे, उनके पेपर्स आपके सामने होंगे, उन्होंने पहले अग्री कर लिया होगा, उन्होंने पहले कन्फेशन भी कर ली होगी, लेकिन उसके बाद वो आपके सामने ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि वो कम्प्लीटली they've not been a part of it. It's all of it is a frivolous contention altogether, and they are absolutely innocent. So वो बड़ा डिफरेंट पर्सनालिटीज है. लेकिन उस मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें आपके लिए बड़ी बेहतर इस तरह से होती हैं दैट यू ऑलरेडी नो दैट अ पर्सन इज लाइंग और टेलिंग द ट्रूथ. वो बहुत होता है. और फिर जब आप कोर्ट्स में जाते हो, स्पेशली ट्रायल कोर्ट्स में जाते हो, तो इतनी लर्निंग है. ट्रायल कोर्ट्स में सबसे ज़्यादा लर्निंग होती है मुझे लगता है. जी जी, इसमें कोई ट्रायल के अलावा आपकी लर्निंग नहीं हो पाती जब तक आप ट्रायल नहीं कर रहे होते हो, जब तक आप देख नहीं रहे होते हो कि जज साहब ने आज क्या ऑर्डर पास करना है, कल क्या करना है, इसमें चार्ज का फ्रेम होगा, इसमें एविडेंस कब रिकॉर्ड हो रही होगी, इसमें अगली पेशी में क्या हो सकता है, अच्छा चलो ये तो क्रिमिनल नहीं है तो इसमें मेमो दे के काम शुरू करते हैं. बहुत सारी चीज़ें, सिविल हो या क्रिमिनल हो, आप इतनी चीज़ें आपको ट्रायल आपका इधर से स्टार्टिंग फ्रॉम द FIR कि आपके FIR के अंदर क्या लूप होल्स हो रहे हैं. मुझे तो एक मजाक बन गया था ना कभी उस वक्त आज से कुछ 10-15 साल पहले ना बेटर कॉपीज़ ट्रायल सेशन पे निचली कोर्ट्स में कम थी, लोअर कोर्ट्स में. सो वो जब बेटर कॉपीज़ नहीं होती थी तो एक पढ़ना पूरी FIR को जो था ना, वो एक कंप्लीटली एक टास्क होता था. उर्दू वो तो गया, बस उसकी तो प्रैक्टिस गई. टास्क होता था. और मुझे मेरा एक मजाक बन गया था कि ये वाली अच्छी है, ये वाली पढ़ लो, ये वाली अच्छी है. तो वो फिर मुझे मेरी एक सीनियर ने बताया, उसने कहा FIR पढ़ने से नहीं आती, FIR एक्सपीरियंस से. आपको पता होता है कि इसमें यहाँ क्या लिखा होगा, क्या लिखा होगा, आपने ऊपर की 4-5 चीजें. एंड फातिमा, थ्रू योर अभी जो आपने ये बात की, थ्रू योर स्टोरी, मैं तो हमेशा अपने प्रोग्राम से भी एंड ऑफ द रिकॉर्ड भी बड़ा ये बात प्रीच करती हूँ, विद नो ऑफेंसेस टू द लॉयर्स हु आर इन हाउस और जिन्होंने ये एक्सपीरियंस नहीं लिया हुआ. मैं लड़कियों को हमेशा एडवाइस ज़रूर करती हूँ कि एटलीस्ट कुछ साल ट्राई ज़रूर करें. बाद में बेशक आप यू कैन ऑलवेज चेंज योर टेस्ट, बट डू नॉट जस्ट रन अवे फ्रॉम, बिकॉज अ लॉयर ये टेस्ट ना लिया आपने तो आई थिंक सो. बिल्कुल. और देखिए वो चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, वो अलग बात है कि उसके अलावा इवन फैमिली के अंदर जो भी है, उसके अलावा भी आप देखिए, या तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर है या तो आप कम्प्लीटली ADRs की तरफ जा रहे हैं और चीज़ों में है, तो फिर तो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. बट दैट्स नॉट कॉर्पोरेट कमर्शियल, वो फिर आप एडवाइजरी या ट्रांजैक्शन में जा रहे हैं, फिर तो यू हैव चोजन योर फील्ड. बट अगर आपको पता चले कि हाउ डू द कोर्ट्स ऑपरेट, so you have to start from the lower courts. Exactly. You have to begin you by cannot going run to the away courts from at that. 8 in the morning, being there. और बहुत दफ़ा ये भी होता है शायद, it's a part of learning कि आपके केस से पहले इतने इंटरेस्टिंग और केसेस लगे होते हैं कि आप जब उनके कॉन्वर्सेशन सुन रहे होते हो, so you learn a lot from the others' mistake. ये मेरी आज भी एक्सरसाइज है. After I finish my cases in the high court, मैं डिफरेंट कोर्ट्स में जाके ज़रूर बैठती हूँ एंड आई लर्न फ्रॉम दैट. सो इट इज़ अ वेरी कमिंग फ्रॉम समवन लाइक यू, ये बड़ा एक अच्छा मैसेज मेरे प्रोग्राम के थ्रू बहुत हेल्पफुल होता है. सो अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं थोड़ा, बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चलेगी एंड वी हैव हमारे पास एक टाइम लिमिटेशन. सो फ्रॉम कॉर्पोरेट एंड देन ऑब्वियसली यू हैव गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल, यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ द ADRs एंड ऑल. वहाँ से इस नीश में किस तरह स्विच किया? How did it happen? इत्तेफाकन वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा था एंड मुझे अंदाज़ा हुआ, आई केम टू नो कि भाई मुझे ना कॉन्ट्रैक्ट साइट वगैरह भी देखनी है, सब कुछ भी. तो फिर आई जॉइंड लेक्सियम वलीद इकबाल साहब के साथ एंड रज़ा रहमान के साथ. आई स्टार्टेड वर्किंग विद देम फॉर गुड quarter to 4 years. वहाँ पे it all started. My journey from of contracts and corporate and commercial side or advisory or opinions or transactions basically started from there.
तो जितना काम उन्होंने हमें सिखाया वे इवन फ्रॉम ऑयल एंड गैस की ड्यू डिलिजेंस भी होती थी, उसके अंदर लैंड एक्विजिशंस भी थी, उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट लॉज भी आ रहे हैं, उसके अंदर पॉलिसीज़ बन रही हैं कंपनीज़ की, क्योंकि रिटर्नर्स बहुत सारे होते थे, डिफरेंट काम आ रहा होता था, तो उधर बहुत ज़्यादा काम किया था, लर्निंग हुई। फिर उसके बाद लेटर ऑन आई जॉइंड अनदर कंपनी वेयर आई वर्क फॉर 1.5 year। उधर मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा किया। अमेजिंग। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बाद देन आई जॉइंड माई करंट एम्प्लॉयर, और यहाँ तो खैर मैंने बहुत ही डाइवर्स काम किया है, बिकॉज इनके बहुत ज़्यादा वर्टिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट डाइवर्स काम है, इनके प्लांट्स भी चल रहे हैं, इनकी स्किन केयर की लाइन भी है, इनकी वेंचर कैपिटल भी है, इनका पैकेजिंग भी है, इनका सीमेंट भी है, इनका स्टील भी है, इनके आर्बिट्रेशंस भी चल रही हैं, इनकी डिस्प्यूट्स भी चल रही हैं, इनका नए से नए आइडियाज़ भी जनरेट होते रहते हैं कि आज इस बिज़नेस में जाएँ तो क्या करें, और देयर इज़ सो मच, इनका ट्रस्ट हॉस्पिटल भी है, so there is so much already happening with the group, and it is all the time evolving. So you've tested yourself in both waters, if we can summarize it like that. तो क्या काम ज़्यादा, मेरा ख्याल है कि कुछ अर्सा काम करने के बाद ही आपको समझ आती है that what shoe fits me basically. I was meant for this, but I am glad you are clear about it. I am clear. अब जो मैं कर रही हूँ, I was meant for this because this involves a lot of strategy. Okay. A lot of legal strategy as well. It's not only एक वकील वो नहीं होता जो मुझे ये लगता है कि जब इन हाउस होते हो ना, तो एक बड़ा आसान है एक्सटर्नल काउंसिल होना, ठक 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 जो कानून है आपने बताया, और दिस इज हाउ इट इज। ओके, दैट्स एन इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव कमिंग इन फ्रॉम एन इन-हाउस काउंसिल। इन-हाउस का एक ज़्यादा बड़ा चैलेंज है, जहाँ पे वो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट कर रहा है, सबकी एक्सपेक्टेशंस मीट कर रहा है, वहाँ पे वो ये नहीं सुनना चाहता कि आपकी वजह से हमारा काम रुक गया है। वहाँ पे ऑफ कोर्स आपने अच्छी तरह बिल्ड अप करके आपने पूरा, एक तो आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी तरह होती है, देयर आर वेज जहाँ पे आप यू टेल देम कि दिस इज द लॉ एंड यू विल हैव टू वर्क विद इन द लॉ, ऑफ कोर्स कंप्लायंस है, रेगुलेशंस हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर रहते हुए भी आप कैसे, हाउ डू यू मेक बिल्ड स्टेपिंग स्टोन्स, दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज दैट इन-हाउस काउंसिल्स फेस, because they have to be the enablers. It is rigorous work. मैं हमेशा I always say, just because I am in litigation, या मैं इस चीज़ को promote करती हूँ, I have my own reasons to promote that, and that too, that grass has always been on the other side. That is an integral part, Shiza. हम लोग we can't operate without litigators as well. हमें देखें, as an in-house counsel, I'm not supposed to stand before the roster. All right. Yes, absolutely. So, absolutely. My bar regulations don't allow that. So I will have to come to you anyway. And for that, of course, what I do inside is I also have a portfolio of litigation management. Okay. So from the engagement of the external counsel, figuring out which external counsel to engage at what terms, when to pay, how to pay. And definitely, and then even, जब तक आपको खुद नहीं पता होगा, exactly, आपको खुद experience नहीं होगा, you will not be able to pick the right even sitting with them, strategizing कि ये होगा, ये नहीं होगा, ऐसे चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, इस applications जो बनी है, pleadings जो बनी है, उनकी review भी खुद कर रहे हैं हम लोग internally. So it's a lot of work. We are not a post office at all. Okay. So a lot of times in-house counsels के बारे में एक थोड़ा सा ना व्यू ये भी है, और ये गलत भी नहीं है, कुछ होते भी हैं ऐसे कि वो बिल्कुल एज अ पोस्ट ऑफिस काम करते हैं। Okay, you can convey any message you want to through this program. नहीं, पता है शिज़ा, पोस्ट ऑफिस में आपकी लर्निंग जीरो हो जाती है, आप बिल्कुल वैल्यू एडिशन नहीं करते हो, आपकी लर्निंग तो आपने जो रोकी आप वैल्यू एडिशन में बिल्कुल नहीं कर रहे हो, और आप उल्टा थोड़ा सा मुझे लगता है कि इनजस्टिस कर रहे हो अपने काम से, अपने एम्प्लॉयर से भी इनजस्टिस कर रहे हो। Okay, because so I got a very interesting and a very different perspective from you today about this in-house working, because I have nearly no experience. इसमें इतनी legal cost optimization हो जाती है अगर आप अच्छा काम कर रहे होते हैं कि for example, I'll give an example. When I joined, I was the first lawyer. Now we are a team of like 9-10 people. So हमारे भी जो कॉस्ट आ रही होगी वो उस कॉस्ट से अभी भी कम होगी जो कि एक एक्सटर्नल काउंसिल एक लिटिगेशन का चार्ज कर सकता है, बिकॉज वो डिपेंड करता है आपके लिटिगेशन। अब सर्विस सेक्टर में तो है नहीं कि बड़ी रेगुलर से लिटिगेशन होंगी आपकी, सो देयर जनरली वेरी बिग और क्लास एक्शंस, इंडस्ट्री एक्शंस, ये वो सब कुछ। सो a lot of times हमने क्या किया, हमने लीगल कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर दी है। वी ओनली गो टू एक्सटर्नल काउंसिल्स व्हेन वी रियली नीड टू गो टू एक्सटर्नल काउंसिल्स, अदरवाइज 80% of the work is done internally. Okay, so I mean, we build that capacity. That is equal to the work you might be doing. It's a law firm inside. Inside it's a boutique law firm. You're operating inside. बिल्कुल, it's at your disposal, at your terms, at the timing of your choice. I actually love knowing about your legal journey so far. Mashallah, such an amazing profile, Fatma.
Let's being a female lawyers, two female lawyers sitting in front of each other. मैं हमेशा फीमेल पर्सपेक्टिव से इस पेशे के बारे में ज़रूर बात करना चाहती हूँ और करती हूँ. What do you think? ये जो एक मिथ है, मैं तो मिथ ही कहती हूँ कि this is not for girls. एंड मुश्किल मैं ये उसके साथ मैं ये नहीं कहती मुश्किलें नहीं है, मैंने खुद बहुत उठाई हैं, आज तक उठा रही हूँ एज अ फीमेल, लेकिन मैं उनको कभी भी नेगेटिवली उस तरह से पोर्ट्रे नहीं करती कि 4 लड़कियां जो मुझे देख रही हैं वो कहे भाई सॉरी दिस इज नॉट फॉर मी, आई एम नॉट गोइंग टू डू. आपने बिल्कुल सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इट इज़ अ मिथ, ये मफरूज़ा ही है. इट रिक्वायर्स hard work, yes it does, and it requires the same amount of hard work by men as well. वो तो शॉर्टकट है ही नहीं ना. शॉर्टकट तो है ही नहीं ना, लर्निंग का कोई शॉर्टकट नहीं है. There's no so shortcut. वो तो ख़वातीन के लिए भी उतना ही है, मर्द हजरात के लिए भी उतना ही है. मर्द हजरात के ज़रा फ्रेटर्निटी ज़्यादा है, ज़रा मूवमेंट ज़्यादा क्विक होती है, ख़वातीन की थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है. लेकिन इन जनरल देयर इज़ नो ऑफ कोर्स शॉर्टकट टू दैट लर्निंग, बट वंस यू आर देयर देन इट्स अ टेक ऑफ. आपका टैक्सी पीरियड हो सकता है कि आप थोड़ा सा टैक्सिंग में आप ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, लर्निंग हो रही है, स्लो है, क्विक है, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स आपने किसको ज्वाइन किया, किससे आप क्या लर्न कर रहे हैं. लेकिन वंस यू आर देयर देन देयर इज़ नो लुकिंग बैक. देन ऑफ कोर्स इट्स अ फ्लाइट दैट यू कैन टेक ऑन योर ओन. How beautifully explained. Okay. So वो that you can सोलो फ्लाइट भी आप ले सकते हैं, वो कैसे ले सकते हैं मुझे लगता है. कॉर्पोरेट साइड पे तो इतना इनकरेज करते हैं, कॉर्पोरेट साइड पे तो इतनी खवातीन की इनकरेजमेंट भी है. आई नो कि अभी भी हमारी बहुत सारी बहुत सारे बाइसेस हैं, बट इफ इन द हाई कोर्ट इवन एज अ क्रिमिनल लॉयर, इफ यू अपियर एज अ क्रिमिनल लॉयर इन द कोर्ट्स, यू आर encouraged a lot. जजेस बहुत encourage बहुत करते हैं. जजेस encourage करते हैं. तो बहुत encourage करते हैं. Yes, they listen to you and at times they listen to you out of the way. Out of the way. And इस सोसाइटी के एक खूबसूरती ये है कि women are generally respected. Yes. So even out of the fact कि अगर वो आपको लग रहा होगा ना कि वो आपकी बात को कम अहमियत दे रहे हैं, वो आप out of respect आपकी बात ज़्यादा सुनेंगे और कम से कम आपकी बात सुनेंगे. So a lot of times that happens. I am so happy to have someone who can actually there's so many good things in our society as well. और जिनको पोर्ट्रे करने की जरूरत है, जिनको पोर्ट्रे नहीं किया जाता. खवातीन को इज्जत तो मिलती है, वर्क प्लेस पे भी मिलती है, और थोड़ा सा ऐसा सोसाइटी ना है. ऑफ कोर्स हर जगह बाइसेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो पूरी दुनिया में हर जगह हैं, लेकिन हमारे एक सोसाइटी के अंदर ना ये एज मिलता है. बिल्कुल. आपको अभी भी अगला बंदा सीट खाली करके दे देता है. अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपका एक जो वर्क एक्सपीरियंस है, you have worked as a radio presenter. Yes, tell us about that. वो क्या? बड़ा मजे का था. Right after my I told you I wanted to do mass communication. Yes, I was always a person जो कि रेडियो के साथ चिपक के बैठा था. I was always winning on the radio shows like anything, बचपन से ये वो. So I would actually copy those presenters. मुझे अच्छी तरह पता है वो कैसे बोलते थे क्या. And that is where I think I learned a lot of fluency as well. So जो flow होता है, बात होती है, रब्त का जो भी सारा कुछ है, वो सारा वहाँ से start हो चुका था. And I wanted to do radio, लेकिन then I realized that radio is not something जो कि आप in Pakistan pursue कर सकते हो as a career. Either आप बहुत बड़े होके आप कुछ कर रहे होते हो, otherwise ये कि it's nothing. The progression is slow. The profession is also very it is very underpaid and it is slow. The progression is also slow. So बहरहाल ये कि उसमें जो कि मुझे करनी थी, तो वो someone in my extended family, they visited us once as he was working with the Pakistan Broadcasting Corporation. So वहाँ से said कि लेकिन you are too young for that. अब्बू ने बात की कि my daughter she is very much interested. कहते हैं अभी तो आपकी एज भी नहीं, अभी तो आपने O levels की है, सब कुछ किया, तो हम तो 18-19 साल से कहाँ, हम तो अंडरग्रेड से कम रखते नहीं है ये वो. मैं कहा यार you can just have an audition done for me. So वो audition ऐसे हुआ कि वो audition बड़ा अच्छा हो गया, और then they said कि नहीं, unless and until somebody specially asks you, just don't tell. And therefrom I started. I worked with them for 4 years. उसके बाद में FM channels, FM channels. So I've done music countdowns, I've done morning shows, I've done evening drive times, I've done current affairs and siyasat, I've done all of them. Interviews, बहुत ज़्यादा celebs, जितने भी showbiz के celebs हों या फिर music से हों, कुछ हों, मैंने बहुत. तो वो भी आपका एक काफ़ी किया है. current affairs, morning shows तो मैंने बहुत अरसा किए हैं. So ज़बरदस्त. So I think so as a lawyer it helped you in the fluency. मुझे लगा कि जैसे वो जो रेडियो है ना, उसकी वजह से मेरा इतना फ्लो बन गया था कि मुझे लफ्ज़ फम्बलिंग कम हो रही थी, मुझे लफ्ज़ ढूंढना नहीं पड़ते थे, सोचने नहीं
नहीं पढ़ते थे, so a lot of times वो मेरे लिए बहुत That helped helpful you रहा out. है, बहुत helpful So Fatma, someone who's a working mother like myself and you, मैं ये question जरूर include करती हूँ. How is the work-life balance? It's not a balance. It's it is not an a balance. It's integration. outbalance. It is an integration. It is not a balance. So my children, I have 4 children. Mashallah, all under 10. 10. all under 10. And of course inclusive of a pair of twins. Oh yes, yes. I wanted to say that, लेकिन वो मैंने कहा खुद ही. नहीं वो अल्लाह का शुक्र है that मुझे लगता है कि वो you people treat you in the manner you train them. तो आप अपने बच्चों को भी जैसे ट्रेन करेंगे ना, वो भी आपको 200%, 200%. तो वो भी आपको ऐसे ट्रीट करेंगे. तो शुरू से बच्चों को पता है कि पेरेंट्स काम करते हैं, पेरेंट्स घर पे होते हैं या नहीं होते हैं, उनकी क्या रूटीन है, वो कब आते हैं कब जाते हैं. Very apt. बच्चों को बहुत अच्छी तरह पता है हमारी रूटीन का, और खुदा ना खास्ता ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि वो मुझे कम प्यार करते हैं. वो अभी भी मुझे अपने अब्बा से ज़्यादा तरजीह देते हैं. Actually, yes, I'll tell you something. Someone like me who has studied after the kids and all, एक perception ये आता है कि कम time दे. मुझे ऐसा लगता है mom guilt में हम लोग उल्टा ज़्यादा in less time but very quantitative. So बच्चे आपको respect करते हैं. And this is what my kids do any also. given day my husband actually makes fun of it. कहता है यार मैं जो मर्जी कर लूँ इनके लिए, ये चमचे तुम्हारे हैं सारे. Really, that I'm sure you must be an amazing mother, and this is a very wrong perception about working mothers. बिल्कुल कि वो कम time देती हैं और you know they're not qualitative as something who as someone who is a they may not homemaker. be quantitative, they are best qualitative. Oh yes. The time we spend with our children is the quality time. मैं अपनी बेटी को बच्चों को पढ़ाती भी खुद हूँ. अभी तक उनके कोई मैंने ट्यूशन similar, very similar. एंड जब तक मैं खुद सब कुछ मैनेज कर पा रही हूँ, I'll do it myself. Okay. और and even if you are getting any help for yourself, still you are supervising. आप वहाँ से you are not off the लेकिन at the same time जो मेरे घर के इकोसिस्टम के अंदर जो एक सपोर्ट है वो ये है कि फिर मेरे से which is the best thing that is मेरे घर के इकोसिस्टम में जो है कि क्लीनिंग किचन मेरी जिम्मेदारी नहीं है. बिकॉज सी अगर आपने किसी को कोई काम कर रहा है तो वो फैसिलिटेट भी अपने आप को कर रहा होता है ना, अपने आराम के लिए भी काम कर रहे हो. तो वो जो अल्लाह का totally justified. I cook when I want to or if there is a need. Oh yes. ठीक है. फॉर एग्जांपल मेड नहीं है, कुकिंग नहीं हो सकती है, कुछ मसला है, मेड बीमार है, जो भी मसला है, तो इस तरह के इश्यूज हैं. एंड बच्चे स्पेशली कुछ फरमाइश कर रहे हैं जो उसको नहीं बनाना आता इस तरह. तो इट इज़ नॉट अ रूटीन फॉर मी. सो वो जब आप काम कर रहे होते हैं आप अपने माहौल को भी अपने लिए फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, और आपके घर वाले भी. माई हस्बैंड इज द बिगेस्ट सपोर्ट दैट आई हैव. माई पेरेंट्स इन लॉ आर द बिगेस्ट सपोर्ट इन द होम. माशाल्लाह. सो व्हेन आई एम फॉर एग्जांपल इफ आई एम सिटिंग हियर, सो मुझे पता है कि मेरे बच्चे आर वेल टेकन केयर ऑफ. एंड दे वुड नो कि मदर नहीं है तो दादा दादो ये बस. And then they get very self sufficient. That is they are so well managed. They are mannered. Yes. They know time management. I think we need to have another program on that. There is a lot of realism coming out of two mothers. So I have to wrap it up. बड़ा मजा आ रहा था, but I have the time constraint. So end पे any message you want to convey to the girls coming in the profession, whether going into litigation, whether going into the corporate side, क्या कहेंगी उनको? What is the driving? मैंने जो एक चीज लर्न की है और वो मैं आगे कन्वे करना चाहती हूँ. Never start with a no. Okay. Never start with a no. हमारा मसला ये है, हम काम सोचते ये कैसे होगा, ये होगा कि नहीं होगा, नहीं फलाना क्या कहेगा. नो, डोंट स्टार्ट विद द नो. वंस यू स्टार्ट थिंकिंग कि ये होगा कैसे, आप रास्ते निकाल लेते हो. यू फिगर आउट. ओपन द डोर्स ऑफ योर थिंकिंग प्रोसेस. आप ढूंढ लेते हो. और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल लिटिल एग्जाम्पल, जैसे जब मेरे ट्विन्स दे वर नॉट बोर्न एज येट. So a lot of people, including very close people to me, actually said that it may be difficult to continue working. Yes. But then even at that time I realized कि अगर मैंने यहाँ छोड़ा ना तो फिर बहुत पीछे रह जाऊंगी. नहीं कर सकते. मैंने अपने सारे वो सपोर्ट सिस्टम को बेहतर किया, हर चीज़ बेहतर की, और उसका नतीजा ये निकला कि with my subsequent child nobody even bothered asking me the question or telling something or like advising me out of nowhere. This is a very practical advice coming out of you. और अगर आप खुद लैक कर रहे हैं ना, अगर आप खुद काम चोरी दिखा रहे हैं, then nobody is going to serve you in the silver platter. With that beautiful message and a very encouraging and a very realistic show coming out of a lawyer who has been into the profession even more than a decade, I have to wrap this up. इंशाल्लाह नए शो के साथ, नई एक बहुत अमेजिंग मेहमान के साथ जल्दी हाजिर होंगे. Thank you and अल्लाह हाफ़िज़.